Hello everyone, good evening and welcome to today's webinar. So I hope दोपहर है और सब नींद में नहीं है and I want everyone to participate in this webinar. So I would request everyone कि आप सब अपने cameras on रखिए. So this webinar can be two-way and interactive as well. And I will be needing so many answers from you. O Zoom ba Yes. usato? Kailan ho tonse? So, Yash, can we have a PPT? Yes. So, hello everyone. I want कि कौन मुझे आंसर देगा कि एलिवेटर पेज क्या है? आई नो राज भाई ने बहुत यानी इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिया है, बट आई वांट योर आंसर्स एज वेल. सो प्लीज एनीवन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्हाट इज एलिवेटर पेज? Hi, एनीवन? can I? Yeah, यस प्लीज. yeah. Elevator speech is pitch is like a pitch where you have to give a say about your company or organization in very few limited time that you have. So it Absolutely. should be like from your mission to your goal, you should have everything in that 1 or 2 minutes in that elevator speech, if I'm not wrong. Yes. Thank you. Yes, absolutely correct. So yes, let me tell you, like elevator pitch is 30 seconds, and why 30 seconds? Because human attendance at span is very low, which is 10 to 30 seconds, and that is why we focus on 30 seconds. अगर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है, अगर आपको अपना बिजनेस इजी वे में सेल करना है, तो यू हैव टू स्पीक इन 30 seconds, and that is why we are here today. So in today's session is very much practical. It is not about we are discussing theories, but we'll be building immediately the pitch here. So you will be learning the how to create a pitch, how to create a structure for your NGO, structure wise and step by step. So yes, next slide, please. Yash, next slide. Yes. So let us understand the real problem here. So we are doing incredible work. Every NGO and everyone we do incredible work, but still we are getting to struggle to reach to our target audience, right? So the mission is very much clear, but we don't know how to communicate through our mission. And it's you might be helping thousands of people, but you cannot explain in 15 to 20 seconds, and that is why people lose interest. So the good work does not guarantee funding, but clear communication does. So the challenge here, like any challenges any NGOs are facing right now, like I assume like we are targeting donors, right? So maybe we face that challenge that we are not getting proper donor. Anyone? I hope everyone is not sleeping. यस, आई थिंक हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट करेंगे तो आई थिंक सबके लिए बेटर रहेगा. सो मैं ये पूछ रही हूँ कि एनी एनजीओज जो अभी डोनर रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं. लिप्सा जी, मुझे जब जहाँ तक पता है, आई थिंक सभी एनजीओ की कॉमन प्रॉब्लम होती है. मतलब डोनेशन नहीं होता है और प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं वो
चला पाते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स आप अगर बताना नहीं चाहते हैं, अनम्यूट करके आप चैट बॉक्स में भी यस और नो बता सकते हो। नहीं, बिल्कुल अभी Yes, I think हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम डोनर्स के साथ में। yes. So donors mostly क्या होता है कि donors decide in 1 to 15 seconds कि कम्युनिकेशन इग्नोर करना है कि आगे कंटिन्यू करना है। मोस्ट एनजीओ क्या करते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन इन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो अपनी एक्टिविटीज बताते हैं पर उससे क्या आउटकम मिलता है वो नहीं बताते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है। सो ये हमारे साथ होता है कि जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बाकी की सारी ही हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कि हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, हम ये सारी ही चीजें बताते हैं। बट जो फोकस होता है वो हम बताना भूल जाते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैलेंज हम फेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यस यस, सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, राइट। सो ये स्ट्रक्चर एलिवेटर पिच आपकी बनाता है, विच इज हु यू आर, प्रॉब्लम आपने कौन सी सॉल्व करी है, सॉल्यूशन आप क्या ऑफर करते हो, आपने कौन सी इम्पैक्ट क्रिएट करी है, और आपका क्या कौन सा यूनिक पॉइंट है। सो आई रिपीट अगेन कि हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है फॉर एलिवेटर पिच, दैट हु यू आर, आप कौन है, प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व कि आपने अपने एनजीओ में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, कौन से आपके वैसे एग्जाम्पल्स वी विल गिव के कौन से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, राइट। उसका क्या सॉल्यूशन आपने ऑफर करा है, इम्पैक्ट आपने सोसाइटी में कैसा क्रिएट करा है, और आपकी यूनिकनेस कौन सी है। सो मोस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट्स क्लैरिटी एंड एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन कि कहीं किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज आप बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, कोई भी डाउट है। सो एक ये स्ट्रक्चर है पूरा फॉर एलिवेटर पिच। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो आउटकम इसका क्या मिल सकता है हमें, राइट। ये स्ट्रक्चर, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से हमें ज्यादा मीटिंग में कैसे फोकस करना है, स्ट्रक्चर वाइज एक कोई भी पर्सन का ट्रस्ट आप एक ही बार में गेन कर सकते हैं, और कन्वर्सेशन आपका इंक्रीज होगा। आप अपनी इंट्रोडक्शन में आप जितना ही फोकस्ड होगे, हम सब लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। सो दिस इज लाइक दैट ओनली कि आप जब अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो आपको, आप सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि आपको कैसे आगे का कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना है, और वो आपका कन्वर्सेशन भी इंक्रीज करता है। सो इंस्टेड ऑफ द डोनर और एनी पर्सन यू आर टॉकिंग टू, कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी, कोई हमें ये नहीं बोलेगा कि वेल गेट बैक टू यू लेटर, यानी हम आपसे बाद में डिस्कस करते हैं, पर वो आपसे डिस्कशन में इंटरेस्टेड रहेंगे। सो कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है, कॉमन कम्युनिकेशन गैप क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो की कम्युनिकेशन गैप्स,
तो बहुत बार ये होता है कि मैंने जैसे बताया कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब वी आर टॉकिंग टू मच, यानी हम सारी इंफॉर्मेशन एक बार में दे देते हैं। हम बहुत सारी टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जो हम हमारे एनजीओज में यूज करते हैं, पर हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं जो सामने वाले पर्सन को पता चलेगा, राइट। फिर हम कोई भी कन्वर्सेशन एक क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं, कोई भी क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं और हम उनको कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये सारे कॉमन कम्युनिकेशन गैप रहते हैं कि हम उनको एक क्लियर कन्वर्सेशन नहीं दे पाते हैं। कन्वर्सेशन गैप इससे बढ़ जाता है एंड उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है वो इंट्रोडक्शन क्लियर है नहीं है, आपका क्या वर्क है, आप किस सेक्टर में वर्क करते हो, आपका एनजीओ किसके रिलेटेड है, कौन सी एक्टिविटीज है। ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में उठते हैं एंड दे आर नॉट, यानी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाहते थे। एंड दैट इज व्हाई एलिवेटर पिच जो हम 30 सेकेंड की बात करते हैं उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो नॉर्मली अटेंशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नॉर्मली अटेंशन हमारा वेरी लिमिटेड होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उनका अटेंशन ग्रास्प करने के लिए 8 to 12 सेकेंड्स मिलते हैं, और वो अटेंशन में अगर वो आपको क्विकली समझ नहीं पाते हैं तो वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं आजकल हम सोशल मीडिया में सारे ही लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक के रील्स देख रहे होते हैं, राइट। सो अगर एक वैसा अटेंशन होता है कि अगर हमें वो सही लगेगा तो हम वो देखेंगे, अगर हमें सही नहीं लग रहा है तो हम उसको स्क्रॉल कर देंगे। तो हमारा एलिवेटर पिच भी वही काम करता है कि हम कैसे उसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम हमारी फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं, उससे सामने वाला पर्सन ये डिसाइड करता है कि मुझे आगे का इनका इंट्रोडक्शन सुनना है, लास्ट तक एंड तक सुनना है, जाना है आगे, क्यूरियोसिटी है कि नहीं है, वो हमारा उससे वो अटेंशन स्पान से डिसाइड हो जाता है। सो हमारा प्रेजेंटेशन क्यों मैटर करता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फर्स्ट इंप्रेशन एंकर डिसीजंस, राइट। सो हमारा प्रेजेंटेशन क्यों मैटर करता है। सो अभी हम आज का ही एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मैं ये करूंगी कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं क्या जानना नहीं चाहते हैं, और मे बी मैं पूरा प्रेजेंटेशन या फिर सिर्फ गुजराती में दे रही हूँ या फिर सिर्फ इंग्लिश में दे रही हूँ, कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे आपको कौन सी लैंग्वेज में डिलीवर करना है। एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। सो लाइक दैट आपके लिए भी वो बहुत मैटर करता है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन कोई भी पर्सन को देते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या आपने कहीं पे भी पार्टिसिपेट करा है, तब आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने एनजीओ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड वो उसके बाद सोचते हैं कि ओके ये एनजीओ बहुत ही प्रोफेशनल है, उनका बहुत स्ट्रक्चर बेस्ड वर्क है, उनकी ये एक्टिविटीज है, और उनको वो सारी चीजों की एक क्लैरिटी मिलती है, और इसी वजह से प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसी वजह से प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। सो एक क्लैरिटी होती है, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो क्लैरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। तो आप देखेंगे कि आप कोई भी इंट्रोडक्शन देते हैं, एक इंट्रोडक्शन वैसा होता है कि जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करे ही जा रहे करे ही जा रहे करे ही जा रहे, राइट। और दूसरा इंट्रोडक्शन ऐसा होता है जो टू द पॉइंट होता है, पॉइंट वाइज होता है। आप नॉर्मली इवन कोई कंटेंट भी रीड कर रहे होगे तो आपको कैसा कंटेंट रीड करना पसंद है। एक होता है कि जो आपको पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर करके देते हैं, और एक होता है कि जो आपको पैराग्राफ के पैराग्राफ रीड करने होते हैं। मोस्टली क्या इजी रहता है
कि हम पॉइंट वाइज कैसे उसे इजीली ग्रास्प कर पाए, राइट? सो दैट इज व्हाई हमें किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एक क्लैरिटी बिल्ड करनी पड़ती है, हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ता है, और वो क्लैरिटी से आपका एक ट्रस्ट गेन होता है। सिंपल लैंग्वेज में वी विल से कि एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस से आप अपने एनजीओ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? Then comes to the our pitch framework, which is next slide. So अगर हम हमारा एलिवेटर पिच हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक ये है कि आप कौन है, आइडेंटिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम आपने कौन से सॉल्व करे हैं अपने एनजीओ में, और आप कौन सी सर्विसेज केटर कर रहे हो, राइट? आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड पार्ट विच इज सॉल्यूशन। सो आपने आपने कौन से टाइप का वर्क करा है और आप कौन से टाइप का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। फोर्थ पॉइंट विच इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो, और आपका एनजीओ कैसे वर्क कर रहा है, एंड व्हाट वैल्यूज, व्हाट इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग। एंड फिफ्थ विच इज योर यूनिकनेस, कि आप बाकी लोगों से कैसे अलग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। yes, so coming to the part 1 के जिसके अंदर है who, आप कौन है, राइट? नेम ऑफ योर एनजीओ, व्हाट यू डू, और कौन सी, यानी आपके एनजीओ का नेम, आपकी क्रेडिबिलिटी, और आप क्या क्या वर्क करते। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आई थिंक सब लोग साथ साथ में आप ये बिल्ड भी करें, वन बाय वन हम पॉइंट ले रहे हैं कि जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस करे कि हु आर यू, ठीक है, फिर व्हाट सॉल्यूशन यू गिव। कैन वी गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस, यस। सो ये 5 चीजें हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आई वांट एवरीवन टू राइट दिस, कि हम साथ साथ में हम ये बिल्ड भी करेंगे, क्रिएट भी करेंगे आपकी पिच फॉर योर एनजीओ। सो फर्स्ट विच इज हु, कि आप कौन, आपका एनजीओ का नेम क्या है, आप क्या वर्क करते हैं, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, राइट? So, for example, we are XYZ Foundation, working working for child education for 10 years, और हमने impactfully 20,000 children को फंड प्रोवाइड करा है फॉर देयर एजुकेशन। सो आप ऐसे बिल्ड कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन, के हमारी फाउंडेशन का नेम ये है, हम चाइल्ड एजुकेशन में 10 इयर्स से अपनी सर्विस दे रहे हैं, राइट? वी आर वर्किंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन, और हमने अभी तक 20,000 चिल्ड्रन को एन्युअली उनको हेल्प करी है। एक ही सेंटेंस में आप ये क्रिएट कर सकते हैं। गोइंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड विच इज पार्ट 2, कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है, राइट? कि आप कौन सी, फॉर एग्जांपल आप बच्चों को आप बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप कौन से सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, या आप उनको ग्रूम करने में हेल्प कर रहे हैं, या आप उनके जॉब्स में हेल्प कर रहे हैं, उनकी करियर में हेल्प कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्कूल्स में हेल्प कर रहे हैं, कौन से टाइप में आप उनको हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा आप इसको इमोशनल टच दीजिए, राइट? फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूंगी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इन रूरल इंडिया कि आप 60% ऑफ
children कैन नॉट रीड बेसिक, 60% बच्चे हैं जो बेसिक नहीं रीड कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, सो हम उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो आप ऐसा एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, सो सामने वाले को ये पता चलेगा कि आपको स्पेसिफिक रहना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और या फिर आप कौन सा सर्विस केटर कर रहे हैं, राइट। So coming to the next part, which is solution. So in solution, I'll say what you do and how you do it differently. So आप कैसे कर रहे हैं? For example, हमने पहले ही एग्जांपल लिया है कि रूरल इंडिया में अगर 60% बच्चे पढ़ नहीं पाते, ये हमने एग्जांपल लिया है। तो आप वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं और आपने बाकी लोगों से कैसे वो अलग अचीव करा है, आप वो सेंटेंस अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अंदर ये लिख सकते हैं कि आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि लोकल टीचर्स वहां जाते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कैसे उनको लिखना और पढ़ना है, राइट। और आपने डिफरेंट, नॉर्मल लोग करते हैं पर आपने एक डिफरेंट प्रोग्राम उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करा है। आप ये चीज भी उन लोगों को बता सकते हो कि आप वो प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंटली सॉल्व कर रहे हैं। सो आप ये, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी मच सिंपल कि आपको अपना नाम, आपका एनजीओ क्या करता है, आप कौन से सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मींस आप कौन से टाइप के, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल, फॉर एग्जांपल वेल्थ, वुमन एंटरप्रेन्योर्स और आर्ट कल्चर, कौन से टाइप के एनजीओज में आप वर्क करते हैं, आपने अभी तक किस टाइप का वर्क करा हुआ है, और आप कैसे बाकी लोगों को हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, विच इज इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इम्पैक्ट में दिखा सकते हैं कि आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं और आपके क्या नंबर्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल दिया है कि 60% लोग अगर रूरल इंडिया में पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, तो हमारे प्रोग्राम से मिनिमम 40% बच्चे आज के दिन में पढ़ने लगे हैं, और वो इम्पैक्ट हमने क्रिएट करी है सोसाइटी में। सो आप ऐसा कोई एग्जांपल उसके अंदर रख सकते हैं, आप अंदर अपना टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं, आप अंदर उसके अंदर नंबर्स ऐड कर सकते हैं कि हमने इतने टाइम में ये चीज डिलीवर करी है, या इतने टाइम में हमने इतने नंबर्स डिलीवर करे हैं, और आपने सोसाइटी में और लोगों के बीच में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा है, वो आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फाइनल पॉइंट, विच इज फिफ्थ पॉइंट, कॉल टू एक्शन। सो आपका क्या यूनिक पॉइंट है, उसके लिए आपको क्लियर रहना है कि आपको उसके लिए स्पेसिफिक रहना है कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर आपको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम 3 to 4 डिस्ट्रिक्ट का आपको हेल्प चाहिए, कौन से पर्सन की हेल्प चाहिए, या आपको कितना फंडिंग चाहिए, वो भी चीज आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पर्टिकुलर कोई अमाउंट ऐड करो, पर आप ये बोल सकते हैं कि हमें ये डिस्ट्रिक्ट से हेल्प चाहिए, राइट। सो ये चीज आपको एक इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो इम्प्लीमेंटेशन टिप्स मैं एक बताऊंगी कि आपको ये 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स, ऐसे 3 अलग अलग वर्जन बनाने हैं। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए और खुद को रिकॉर्ड भी करिए, राइट। सो अभी ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, मैं आप लोगों को 2-3 मिनट्स दे रही हूँ, ये हम यहाँ पर ही प्रैक्टिस करेंगे। सो आई वॉन्ट कि आप सारे ही लोग यहाँ पर ये 5 पॉइंट, आई थिंक हम वो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे फिर से चले जाते हैं, यश, जहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं
and I want all the NGOs to participate in this. हम एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं तो आई थिंक बाकी लोगों को भी इसका आइडिया आएगा, एंड वी विल बी वेरी मच वेरी हैप्पी अगर कोई सामने से आकर अगर अपना एलिवेटर पिच शेयर करे तो. I think आज we have 32 participants here and I'll be hoping कि कोई ना कोई तो होगा ही जो अपना 30 seconds या 60 seconds और 15 seconds में अपना एनजीओ का इंट्रोडक्शन दे पाए. सो मैं आपको रफली अराउंड 1 or 2 minutes देती हूँ क्रिएट करने के लिए. कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क मी. तो यस आई थिंक लिप्सा जी एक काम करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है जो लोग अपनी पिच प्रिपेयर कर रहे हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं, यस यस ताकि हमें पता चले कि कौन कौन कर रहे हैं. आपकी जो स्क्रीन है वहां पर एक म्यूट, स्टॉप वीडियो और फिर चैट और उसके बाद मोर होगा. तो मोर में आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहां पर रेज हैंड करके आएगा, तो वो आप वहां पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमें पता चले. और रिक्वेस्ट करेंगे यश को कि सबको अनम्यूट करे, ताकि जो लोग पिच बना रहे हो और इन बिटवीन उसको कोई डिफिकल्टीज है तो वो लिप्सा जी को पूछ सके. सो जैसे यस कि आई मुझे थिंक एक हाथ. यस यस दैट्स यस प्लीज गो ऑन माइक. Yeah, hi, my pitch is ready. Can I pitch it? Yes, definitely. Yeah, sure. See, we are Samson Memorial Education Society based in Pune. Okay. We are into the field of education, and we are looking for funds for school which needs development in their infrastructure for the wear and tear. Okay, the areas that require urgent attention include build a new school, repair of classroom and walls, roofing and leakage repairs, electrical maintenance, safety grades, flooring repairs. Our school serves children from diverse and modest backgrounds, and many of them depend on us for quality education and safe environment. Due to limited financial resources, we are seeking support from kind-hearted individuals, organizations, and well-wishers like you. Thank you. Okay, thank you. We have Karan here. Yeah, hi. Can I speak? Yes, please. Yeah, hi. Good evening. This is Karan Shah here from Civitas Sustainability Foundation. We are organization working in environment sustainability and climate change. Till today, we have finished 1 lakh plus sapling plantation in different parts of India, as well as conserved mangrove plantation in Gujarat and West Bengal. As these ecosystems are very critical for the nature and Earth's climate change, we have actively been identifying regions in partnership with communities in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, and Chhattisgarh and Madhya Pradesh to drive the nature-based solution projects with participation of rural community who are actively dependent on these natural resources. And we particularly are looking forward to connect with independent philanthropists as well as kind-hearted individuals who would want to join in the capacity of either financing or working with us on ground volunteering with different activities. So yeah, that would be it. Thank you so much, Karan and Mike. I have one question for you too. Like, you have spoken your elevator pitch, but do you think everyone has that attention span you have speak whatever you have spoken, right? But do you think like here we have 33 participants, everyone have received or understood what you are trying to say? Wouldn't that be everyone else telling us that? Can I speak, ma'am? So why I am asking this question? Because what happens sometimes, sorry, I'm taking yours example. But sometimes what happens, like we are very much confident about our speech, about our introduction, but we forget to cater and we forget to
think about the other person. He is capable of understanding everything at a time or not, right? So that is why elevator pitch comes in the action. Like this is the simplest, I'll say the structure, whatever you want to say at a first, I'll say at a first introduction, yes. So this is the opportunity from where आपका एक conversation from the first conversation you can end up to getting the perfect donor for you. So I'll say कि एक elevator pitch वो होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी information डाल देते हैं, and the another elevator pitch which is we are only focusing the one point. So there are multiple of structures for elevator pitch. Some of the elevator pitch structures who are focuses on 2-3 USPs or 2-3 problems or solutions and impacts, and some of the elevator pitch structures who can focus on only one USP or your problem or solution or impact. So for the elevator pitch, I will suggest each and everyone जब आप अपना खुद का introduction दे रहे होते हैं तब make sure to focus only on one agenda. So सामने वाले person को clear and crisp पता चल जाए कि what you are delivering and what you are intent to pitch. So I hope this is helpful and very thankful. Yani thanks to Karan and Mike for volunteering here. So moving forward to why this works. So I hope anyone does not have any questions here, right? Yes. So moving forward, yes, Yash. Yes, Can we? sorry for the interruption. Yes. I would ask to Mr. पलाश चंद्र कोनाय, आपने एलिवेटर पिच रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अभी माइक हाँ अपना ऑन किया था, तो आपको अगर प्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं. हाँ. Yes, please. I am Polash Chandra Konai, founder secretary of Tarapur Social Development Society from Bhimhum. लास्ट 20 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं इधर वेस्ट बंगाल में. तो हम लोगों का फोकस एरिया है चाइल्ड मैरिज का लिए, चाइल्ड मैरिज इशू का लिए. तो हम लोग लास्ट ईयर में 37 चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट किया है. तो हमारा एरिया में नियर अबाउट 40% चाइल्ड मैरिज होता है रूरल सेक्टर में. तो लास्ट ईयर हम लोग काम किया था, उस बारे में हम लोग 37 चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट किया है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट. But lack of fund, we are not progress this project another district and another area. तो इस बारे में हमारा जो काम है वो गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी बहुत अच्छा से मोटिवेटेड हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों का मोर एक्टिविटीज करने के लिए फंडिंग एजेंसी का हेल्प जरूरत है. तो हम रिक्वेस्ट करूंगा जे आप आगे जाके हम लोगों का डिटेल्स प्रपोजल देखें. थैंक यू. That's wonderful, Mr. Palash. So इसके अंदर आपने बहुत क्लियरली बताया, that is really a good example here कि कैसे elevator pitch बनाया जाता है. So anyone else want to say? Or should we move forward? Yes, sir. रिसर्च मुझे एक बात करनी थी. जैसे कि अभी जो करण ने बताया कि वो मैंग्रोव के लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक सी शोर पे हमारा एक काम चल रहा है दरिया कांठा पे. तो मैं जानना चाहूंगा कि वो मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए हम क्या सकते हैं. आपने लास्ट में क्या बताया? मैंग्रोव का प्लांटेशन की बात करण बोल रहे थे.
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा एक गुजरात में ऊना ब्लॉक में काम चल रहा है। वहाँ हमने मैंग्रोव प्लांटेशन को हम इस तरह से हमने देखा था कि अगर हम मनरेगा के थ्रू वो उसका प्लांटेशन करवाएंगे, हमारे बजट में कोई प्रोविजन नहीं था। तो अभी मैं सुन रहा था करण शाह से, तो उन्होंने गुजरात में तो कहीं कुछ कुछ जगह में मैंग्रोव का प्लांटेशन किया है। वो दरिया किनारे पे वो खाराश कम होने के लिए उसके पौधे लगाते हैं मैंग्रोव के। तो हमारे वो प्रपोजल में हमने रखा था, मगर हम कर नहीं पाए फर्स्ट ईयर में। तो हम सेकंड ईयर में कैसे उसको वो मैंग्रोव प्लांटेशन को आगे ले जाए उसके बारे में मुझे जानना था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। Okay, so I think we would request Karan to coordinate with him after this webinar. सुपात्र दान अगर करण जी का कांटेक्ट भेज देंगे तो मैं करण से पर्सनली बात कर लूंगा। For sure, yeah. Thank you so much. I think let us move forward to slide number 17. Which is why this works. Common mistakes to avoid हमने कर लिया है, and then moving forward to why this framework works. So ये फ्रेमवर्क क्यों नॉर्मली वर्क करता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, ठीक है। सो इसीलिए ये आपका एक अटेंशन स्पैन बहुत इजीली कैच कर लेता है। प्लस इसके अंदर हमने एक कंटेक्स्ट डाला है, एक इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम हम अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, उसके अलावा उसका प्रूफ है, और उसके अंदर वी आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द एक्शन पार्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज बिल्डिंग द ट्रस्ट, दैट इज व्हाई it is very much easy to close the deal here. And moving towards to next steps, जो हमें next step कैसे करना चाहिए। So next slide please. So your next step should be write your current pitch, apply framework, improve weak areas and practice. So I would request everyone के आप अपनी एक pitch create करिए, राइट। उसकी आप उसका आप फ्रेमवर्क है, 5 सिंपल चीजों में डिवाइड करा गया है उसे। वो 5 चीजें लिखकर आप उसके सामने डिफरेंट आंसर्स लिखे। उसके बाद आप उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए, और कौन से एरियाज में आपको इम्प्रूव करना है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। एंड ऑल्सो ट्राई दिस, आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी को मिल रहे हैं तो आप ये एलिवेटर पिच देने का ट्राई करिए। सो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है। सो द नेक्स्ट स्लाइड। So key takeaways are clarity with funding, impact attracts donors, and structure builds trust, and ask drives action. So ये सारी चीजें हैं कि आपको कैसे क्लैरिटी मिलती है फ्रॉम योर एलिवेटर पिच, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, और थ्रू आपको एक क्लैरिटी मिलती है। So moving, I think we are end of this session. If anyone have any questions or any suggestions, or anyone wants to share anything, any question answers we can take from here. Ma'am, can you share this PPT? Hello, ma'am. Sorry. Can you Yes. share this PPT? Yes, नमस्ते। yes, हम ये PPT आपको शेयर कर देंगे। हाँ, Okay, अभी thank वही मेरा सवाल था। थैंक यू वेरी मच। Yes, yes. करण जी ने कुछ हैंड रेज किया Karan, हुआ है। yes, Karan, you want to ask something? First of all, thanks a lot, ma'am and Subhadra Dhan team for organizing this wonderful session.
Just one question that I have. Now creating the pitch or garnering attention of the donor, how can we use AI models to make our pitch? Let's say a lot of time we speak. Like today we were speaking to you because we had one-to-one, but a lot of time we have to send emails or maybe reach out to people via LinkedIn or any other social media platform. So how can we can we use AI to like make our pitch better, and if at all, then how? Absolutely. I think now you can if you will use AI, you do not have to sit down and write your elevator pitch. But absolutely, you can search in that way. Ki give me. You can brief. यानी AI भी वैसा है कि you have to brief AI कि आप क्या work करते हो in small sentence, right? So you can also write your NGO name, the sector you are working, and you can ask AI, give me 60 seconds of introduction or elevator pitch for my NGO. Or you can also ask for 30 seconds. There are different kind of elevator pitch structure, like you want to focus on 2, 3 areas, or you want to focus on one areas. You can also write in that that give me 60-second elevator pitch elaborating 2, 3 areas of my work, and you have to elaborate 2, 3 areas which you are focusing on. So you will get the entire 60 seconds of elevator pitch. And ma'am, just one follow-up question. I mean, which form of elevator pitch is best? I mean, should it be sent like a letter or a PPT or a video? Because if you are doing with AI, then I believe there would be a lot of options that we can creatively make. So, सबसे अच्छा hit कौन सी चीज करती है? Should we send a letter, email, or a PPT presentation or a short video? I would suggest not PPT, because for your small introduction video would be better. If you can also record by yourself, and it is very immediate action you can take, like एक camera उठाया, अपना introduction आपने record करा, and you can just send it out to everyone like that. Or you can write a formal message, or you can also write a formal email, but I would not prefer PPT for that. Absolutely. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much, Karan. Yes, so next, please. Jivan Tirth, yes. Hi, Lipsa, and thank you Hi. for organizing this. Very valid point you mentioned when Karan gave his speech, that to focus on one USP. I would like to add one point to Karan's query, like how to share our elevator speech in email, or can we use AI? So I'm basically from a corporate world, and I know how data get filtered in the email. So I would suggest like PPT will not help. Instead, a very short yet effective email draft will definitely help you to catch the attention, because every day in those companies like corporates gets lots of emails, and they get easily filtered, blah 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 kind of thing. They usually, this is the way they deal with the emails. So in crux, short and effective email will definitely catch their attention, and then they'll go to the next level, which can be PPT or can be a video. So yes, effective email will be a very good way to connect with the CSR team. Absolutely. And even now, in nowadays, you can also write an email, and you can just use AI suggestion there, and you can reform your I'll say the email structure. You can also use that AI email structure there. Anyone else? यस लिपा जी, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा था वेबिनार में। मुझे लगा कि ये अच्छा है आपका, जो अगर पीपीटी मिल जाएगा तो पूरा मैं स्टडी कर लूंगा। पर जो ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी है वो शायद ग्रास रूट पे बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि सारे हथकंडे अपना होने के बाद भी
कुछ मैसेज जैसे कि ईमेल करते हैं या किसी को हम प्रेजेंट करते हैं हमारे काम को, तो इतना रिस्पॉन्स शायद नहीं मिल रहा है। तो यही हम सीख रहे हैं सारी जो भी ये वेबिनार्स वगैरह है तो एक्सपर्ट के साथ, मगर ये क्लिक नहीं हो पा रहा है, या CSR हो या इंटरनेशनल डोनर्स हो या लोकल डोनर्स हो। तो अभी ये सुभाष दांग से भी मैं कल भी बात कर रहा था कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स है वहीं इतने हम डोनर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें तो रहती हैं। उनके बीच भी मुझे एक अच्छी बात लगी कि आज के जो प्रोग्राम के कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग जो मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ किसी से सीखने को मिलता है। मैं जब जुड़ा तब उस दौरान ही करण जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि ये हमारे कुछ काम के लिए ये लिंक हो रहा है। फंडिंग अपॉर्चुनिटी ना बने तो कुछ और चीजों के लिए कुछ लर्निंग भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुभाष टीम और लिप्सा जी, आप दोनों को thank you all of you. Thank you. Yes, so I think we can end here. Thank you everyone for participating today.